امریکہ کا مشرق وسطی مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ، ایران کا کسی سے جنگ نہ کرنے کا اعلان۔ جو خبر ٹی وی بعد میں دیتا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سوشل میڈیا، حکومتی پابندیوں کا توڑ۔ اور صوبہ خیبر پختونخوا کا پہلا برن اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ ایران پر عسکری دباؤ بڑھاتے ہوئے امریکہ نے مزید 1000 فوجی مشرق وسطی روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی سے جنگ نہیں کرے گا۔ امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون نے ایسی مزید تصاویر بھی جاری کی ہیں جن میں انتظامیہ کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ خلیج عمان میں تیل بردار جہازوں پر تازہ حملوں میں ایران ملوث ہے۔ تفصیلات کے لیے اس وقت ہم چلیں گے ارم عباسی کی جانب جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ارم، یہ بتائیں کہ دونوں ملکوں نے ہی پچھلے 24 گھنٹوں میں ایسے اقدامات کا اعلان کیا ہے جن سے تناؤ میں اضافے کا امکان ہے، لیکن ساتھ ہی دونوں ملکوں کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ جنگ کے امکان کو رد کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ تو اب تک کی تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل سارا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مزید 1000 فوجی کو مشرق وسطی بھیجا گیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اس سے پہلے 24 مئی کو صدر ٹرمپ نے بھی اعلان کیا تھا اور وزیر دفاع محکمہ دفاع نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے 15000 امریکی فوجی اس وقت تعینات کیے تھے اسی خدشے کی وجہ سے کہ ایران جو ہے وہ تیل کے عالمی راستوں کو ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے جو صدر ہیں حسن روحانی، انہوں نے اپنے ایک بیان میں اس تازہ امریکی کارروائی کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکی سیاستدان جو ہیں ان پر تنقید کی اور کہا کہ وہ تجربے کار ہیں، ایران جنگ نہیں چاہتا اور امریکہ نے بڑی کوشش کی ہے ایران کو تنہا کرنے کی مگر وہ ناکام رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے لیے گئے ان تازہ اقدامات پر آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکہ کے مطابق ان کی جانب سے جاری کی جانے والی تصاویر میں ایران کی پاسدارانہ انقلاب فورس کو ایک جاپانی تیل بردار جہاز سے ناکارہ بارودی سرنگ اتارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بارود کہاں نصب تھا۔ دیگر تصاویر میں اسی جاپانی ٹینکر میں ایک بڑا سوراخ دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے بقول ممکن ہے کہ اس کے لیے مزید بارود استعمال کیا گیا ہو۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ان شواہد کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ حملہ ایران نے ہی کیا ہے، جبکہ ایران نے ایک مرتبہ پھر ان الزامات کی تردید کی ہے۔ پیر کے روز قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے مشرق وسطی مزید 1000 فوجی تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بین الاقوامی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور پہلے ہی دیا تھا۔ صورتحال دیکھیں تو ایک جہاز ناروے کا، ایک جاپانی، سعودی اور متحدہ عرب امارات کا تیل کی 15% بین الاقوامی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنا پڑے گی، لیکن ہمیں اس عالمی صورتحال پر بین الاقوامی برادری کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ 10 روز میں افزودہ شدہ یورینیم ذخیرہ کرنے کی اس حد کو عبور کر لے گا جو جوہری معاہدے میں مقرر کی گئی تھی۔ امریکہ نے اسے نیوکلیئر دھمکی کہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے امریکہ فوجی اور سفارتی ہر کوشش کرے گا۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری معاہدے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ وہ 2015 کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ صورتحال کو مزید کشیدہ کرنا صحیح سمت نہیں ہے اور اس کا فائدہ نہ تو ایران اور نہ ہی عالمی برادری کو ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے ساتھی ممالک کے ساتھ مل کر ایران کو باز کرنے اور بات چیت کی راہ ہموار کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جی یہاں پر یہ کریکشن کرتی چلوں کہ 24 مئی کو امریکہ نے 15000 نہیں 1500 امریکی فوجی جو ہے مشرق وسطی بھیجے تھے، جس کے بعد اب مزید 1000 فوجیوں کو وہاں روانہ کیا گیا ہے۔ عالمی برادری بھی اس کشیدگی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ایران جو ہے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں، جبکہ روس نے جو ہے ایران کا ساتھ دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ اس طرح کے اقدامات نہ کرے، اگر وہ یہ اقدامات کرے گا تو پھر ایران کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لے۔ جی سارا۔ آلرائٹ، ارم عباسی ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ ارم فار دی اپڈیٹس۔ پاکستان میں گزشتہ 4 دنوں میں اسلام آباد میں ایک بلاگر محمد بلال خان اور حیدرآباد میں ایک صحافی الیاس وارثی کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ وجوہات کیا تھیں یہ بھی سامنے آنا باقی ہے، لیکن ان واقعات سے ایک مرتبہ پھر
पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की सूरत हाल पर सवाल उठ रहे हैं। 22 साला ब्लॉगर मोहम्मद बिलाल जहां सियासतदानों और मुल्क के सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करते थे, वहीं वो नामूस रिसालत के मौजू पर भी सोशल मीडिया पर खासे मुतहरिक थे। बिलाल खान को कलदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात का हमदर्द समझा जाता था। अपने आखिरी ट्वीट्स में उन्होंने काबीना के रुकन को निशाना बनाया, ISI के नए सरबराह पर तनकीद की और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हालिया खिताब के बाद पैदा होने वाले तनाज़े के सिलसिले में असेंबली में नामूस सहाबा से मुतालिक एक बिल मुतारिफ कराने की मुहिम भी चला रहे थे। उन्हें इतवार और पीर की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने फ़ोन करके इस्लामाबाद में कराची कंपनी के इलाके में बुलाया। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन पर खंजरों से वार किए गए, जिसके बाद उन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। इस वाक़े में उनके चचा जख्मी हुए। इसके साथ ही हमने देखा हैदराबाद में अखबार सिंध डेली से मुंसलिक 58 साला सहाफ़ी इलियास वारसी को हफ्ते के रोज़ नामालूम अफराद ने उनके घर में घुसकर हलाक कर दिया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2019 में अब तक पाकिस्तान में 2 सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है, जबकि गुज़िश्ता साल अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाने की बिना पे कम से कम 3 पाकिस्तानी सहाफ़ी हलाक कर दिए गए थे। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसकी मज़ीद तफसील जानने के लिए हम बात करेंगे इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सारा हसन से। सारा, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो लिबरल ब्लॉगर्स होते हैं वो निशाने पे होते हैं, चाहे वो स्टेट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हों या आम लोगों की तरफ से कड़ी तनकीद हो और शदीद किस्म की बहस मुबाहिसा हो सोशल मीडिया पे। लिबरल ब्लॉगर्स निशाना बनते नजर आते हैं, लेकिन मोहम्मद बिलाल का प्रोफाइल उनसे काफ़ी मुख्तलिफ था। जी सारा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें टेलीविज़न मीडिया पे चाहे कोई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखता हो या बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखता हो, बहुत ज़्यादा सेंसरशिप मौजूद है। ऐसे में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है पाकिस्तान में दाएं बाजू और बाएं बाजू दोनों तरफ के लोगों के लिए, जहाँ वो अपनी राय का इजहार करते हैं। माजी में हमने यही देखा कि गुल बुखारी हो गई, मीना गरीना हो गई और भी बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स जो कि बाएं बाजू के तस्वुर किए जाते थे उन्हें ही निशाना बनाया गया। लेकिन इस दफ़ा ये वाक़या एक ऐसे शख्स के साथ पेश आया जिनका ताल्लुक किसी हद तक एक मजहबी जमात से है। यहाँ पे ये बात भी बड़ी काबिल ज़िक्र है कि क्योंकि पाकिस्तान में एक ख़ास नुक्ता नज़र को चैलेंज करने वालों को हमेशा से एक थ्रेट का सामना रहा है, तो जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो नॉर्मली तौर पर उमूमन ये देखा जाता है कि लोगों का इशारा उसी तरफ जाता है। गो कि इस ताज़ा वाक़ये के बारे में अभी तक हमारे पास ये हक़ाइक़ सामने नहीं आए हैं कि इसके मुहर्रिकात क्या है, इसके पीछे क्या वजूहात है, और अमूमी तौर पर ये भी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कोई ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि मोहम्मद बिलाल जो थे वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो सोशल मीडिया कम्युनिटी का किस किस्म का रिएक्शन सामने आ रहा है? एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि कुछ जिनको अगेन लिबरल ब्लॉगर्स कहा जाता है या कम से कम जिनको बाएं बाजू की सोच का हामिल कहा जाता है, उन्होंने खुद अपनी ट्वीट्स ये की कि हाँ, बिलाल के साथ हमारा बहुत इख्तिलाफ राय था, वो हमारी ट्वीट्स पे आके बहुत मनफी रद्द-ए-अमल देते थे, लेकिन हम इस बात की हिमायत नहीं करते कि उनको हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाए। तो ये तो कुछ कह लीजिए कि लेफ्ट साइड के जो आपके ब्लॉगर्स हैं उनका रिएक्शन है, लेकिन जो राइट विंग कम्युनिटी है या जो वो ब्लॉगर्स हैं खासतौर पे जो मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की हिमायत में बहुत बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उनका इस वक्त कैसा रिएक्शन आ रहा है? सारा इस पूरे केस से बहुत मिक्स रिएक्शन था। आप अगर देखें तो एक खास नुक्ता नज़र के को प्रमोट करने वाले ब्लॉगर्स जो हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद हमारे सोशल मीडिया पे मौजूद है, उन्होंने बिलाल के ट्वीट के ऊपर जो कि उन्होंने ISI के चीफ के बारे में कई बड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि क्योंकि बिलाल का अकाउंट, कुछ इस तरह के ट्वीट्स भी सामने आए कि बिलाल का अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनका अकाउंट हैक करने के बाद नए DG ISI जनरल फैज़ के बारे में ट्वीट की। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं उनके खिलाफ और उनके हक में बहुत सी ऐसी तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं जो कि अमूमी तौर पर तस्वुर ये किया जाता है कि वो राइट साइड के लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिलाल के अलावा पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं, जैसे डॉन अखबार के बाकर सज्जाद सैयद, उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी आमीज़ कॉल्स मिली हैं। फिर आमिर सुहरवर्दी एक सहाफ़ी थे, एक हैदराबाद के सहाफ़ी का आपने जिक्र किया। तो पाकिस्तान में अमूमन ये सारी चीज़ें एक ख़ास राय की तरफ जाती हैं कि कुछ ख़ास हल्के ऐसे हैं जो कि आज़ादी इज़हार राय के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। अब हमेशा हर वाक़े के बाद नज़रें उनकी जानिब उठती हैं, उनकी तरफ से भी अब कोई ऐसी बात आनी चाहिए, क्योंकि जब आप ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसको होने नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, यकीनी तौर पर आपके ऊपर भी कई सवाल उठते हैं। अब ये वक्त ऐसा है जो कि एक गलत ट्रेंड है, इस बारे में चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ऑलराइट, और अभी ये देखना बाकी है कि जो हक़ाइक़ हैं, जो मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से इन दोनों अफराद की जान ली गई, वो क्या थे, और उस लिहाज से पुलिस जो है वो दोनों केसेस की तफ्तीश कर रही है और जो भी मालूमात सामने आएंगी उनसे हम अपने व्यूअर्स को आगाह रखेंगे। सारा हसन हमारे साथ थी इस्लामाबाद से, हमारी नुमाइंदा, बहुत शुक्रिया सारा।
सोशल मीडिया की बात करें तो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाली जमातों के लिए अवाम से राब्ते का ये अहम जरिया बन चुका है। इस तरह इन जमातों के लीडर्स हुकूमती पाबंदियों को गैर मौसर बनाने में बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं, लेकिन रियासत के तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख सारिफीन की अक्सरियत को आए दिन इंटरनेट की बंदिश का सामना भी करना पड़ता है। तो सूरत हाल के बारे में आज मजीद जानते हैं श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाली जमातों और इनके कायदीन पर हुकूमत की तरफ से कई तरह की पाबंदियां आयद हैं। इन्हें बिला रोक टोक जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। सरकर्दा आज़ादी पसंद लीडरों को बार बार उनके घरों में नज़रबंद किया जाता है। ओहदेदारों का मौक़िफ़ है कि रियासत में सिक्योरिटी की सूरत हाल चूँकि इत्मीनान बख्श नहीं है, इसलिए बाज़ औक़ात सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाना या इन्हें महदूद करना नागुज़ीर हो जाता है। लेकिन हुकूमत के मुखालफीन इन पाबंदियों को गैर जमहूरी और आज़ादी इजहार राय का हक सलब करने का दानिस्ता इक़दाम करार देते हैं। ये जमातें और इनके लीडर अवाम के साथ राब्ते में रहने के लिए अब सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ऐसा मीडियम है जिसका हम इस्तेमाल खुलेआम कर रहे हैं और रीच आउट बढ़ गया है लोगों तक और ख़ासकर नौजवानों तक। न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि कश्मीर के बाहर भी जो आपका डायस्पोरा है, आपकी जो कम्युनिटीज़ हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनका भी मैं कहूँगा कि एक डायरेक्ट कनेक्शन आपका उनके साथ हो गया है। भारत की कौमी सियासी धारे में शामिल इलाकाई जमातें और इनके कायदीन भी लोगों के साथ राब्ते को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट को खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम सहाफ़ी और तजिया निगार शेख अब्दुल क़य्यूम भारत नवाज और आज़ादी पसंद लीडरों की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों को दो मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं। भारत नवाज पॉलिटिशियन का सोशल मीडिया नेटवर्किंग यूज करना एक अलमिया है उनके लिए दिस मीन्स वो कितने कटे हैं लोगों से, मगर जो कि यहाँ पे अलायदगी पसंद है उनके पास तो कोई और चारा ही नहीं है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के आम लोगों की एक बड़ी तादाद भी सोशल मीडिया पर खासी सरगर्म नजर आती है। बिलखुसूस नौजवान सोशल मीडिया साइट्स पर सियासी कायदीन को फॉलो करने के साथ साथ इन्हें खुद भी सियासी एक्टिविज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम एंड सेपरेटिस्ट टू, तो मतलब दोनों लोगों को फॉलो तो करते हैं, बट इट्स लाइक दैट सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऐसा है कि जो खबर टीवी बाद में देता है वो सोशल मीडिया के जरिए पहले पहुंच जाती है। लेकिन रियासत में इंटरनेट सर्विस की बंदिश मामूल की बात है। सिक्योरिटी खदशात के 22 साल 2018 में इंटरनेट 32 मरतबा मुकम्मल और 127 बार जुज़वी तौर पर बंद किया गया। हालात को सोशल मीडिया के जरिए बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, जिससे बाकी जगहों पर हिफाजती पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। हमें भी दुख होता है जब इंटरनेट बंद करना पड़ता है या इसकी स्पीड कम करना पड़ती है, बल्कि इससे हमारा अपना मुवासलाती निज़ाम भी मुतासिर हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर बार बार आयद की जाने वाली पाबंदी के पेश नज़र इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाले और भारत नवाज सियासी कायदीन दोनों ने लीज लाइन्स ले रखी हैं या वो फिक्स्ड लैंडलाइन फोन्स पर दस्तियाब ब्रॉडबैंड की सहूलत का फ़ायदा उठा रहे हैं। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। जनूबी एशिया में आज़ादी इजहार की बात हमने की, अब नज़र डालते हैं एक बड़ी इलाकाई ताकत रूस पर। आज़ादी सहाफ़त पर नज़र रखने वाले बैन अक़वामी इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना इंडेक्स में इस वक्त 180 मुल्कों में से रूस 149वें नंबर पर है, यानी वहाँ सहाफ़ती आज़ादी खासी कम है। रूस में सहाफ़ियों के लिए काम करना कितना मुश्किल है, इसकी कुछ नई मिसालें अब सामने आई हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के एक ऑनलाइन अखबार मेडोसा से मुंसलिक सहाफ़ी इवान गोलनोव को मुनशियात की मुबैना फ़रोख्त के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार करने के चंद रोज़ बाद अचानक रहा कर दिया गया। उनकी रहाई को रूस के रोशन ख्याल हलकों की फतह तो करार दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ सहाफ़ियों की मुश्किलात में कमी होती नज़र नहीं आती। गोलनोव अलबत्ता अपनी रहाई पर खुश नजर आया। मैं अपना काम उसी तरह जारी रखूंगा जैसा मैं करता आया हूँ। मैं तहकीक करूंगा क्योंकि मैं कम से कम उन लोगों को जवाबदेह हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। गोलनोव की रहाई से कबल कई सौ मुजाहिरीन ने उस जेल के सामने एहतजाज किया जहाँ पुलिस ने उन्हें घर में मुनशियात की लेबॉरेटरी चलाने के इल्जाम में रखा हुआ था।
गोलोनोव ने, जो कि रूसी हुकूमत की करप्शन के बारे में लिखते हैं, इन इल्जामात की तरदीद की, जिसकी उनके एडिटर्स और हामियों ने तायद की। ये समझना कि जो शख्स मॉस्को में करप्शन के बारे में लिखता हो उसके घर में मंशियात की लेबॉर्ट्री होगी, निहायत बेवकूफ़ी की बात है। इवान गोलोनोव का केस रूस के एक इंतहाई मोतबर अखबार कोमरसॉन्ट का एक स्कैंडल मंजर आम पर आने के फौरी बाद सामने आया। अखबार के लिए सियासत पर रिपोर्टिंग करने वाले 2 सहाफ़ियों को अचानक नौकरी से उस वक्त बर्खास्त कर दिया गया जब एक आर्टिकल में ज़राए के हवाले से कहा गया कि फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन वैलेंटीना मैट्वियेंको, जो कि मुल्क की बाअसर शख्सियात में से एक हैं, ओहदे से हटाया जा रहा है। हम तवातुर से हुक्काम के मुमकिन तबादलों पर लिखते रहते हैं और हर बार ये खतरा रहता है कि शायद किसी को ये बात पसंद ना आए। इस बार हमें हरगिज इस किस्म के रद्द अमल की तवक्को नहीं थी जिससे बात इस हद तक जा पहुँचेगी। सहाफ़ियों की बरतरफी पर रद्द-ए-अमल भी गैर मुतवक्को साबित हुआ। अखबार में सियासी मामलात पर लिखने वाले तमाम 10 सहाफ़ियों ने इस्तीफ़ा दे दिया। जब मैंने सुना कि उन्हें अपना काम करने पर नौकरी से निकाला जा रहा है, वो बात को शाये करना मेरी जिम्मेदारी थी। खबरों को पहले सफ़े पर शाये करना, तो मैंने सोचा इन हालात में मैं अपना काम सरअंजाम नहीं दे सकता। तज्जिया निगारों का कहना है कि इस वाक़े से रूस में सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल का पता चलता है, जहाँ रियासत के खिलाफ लिखना मुनासिब नहीं समझा जाता। किसी न किसी को अब एहसास हो जाना चाहिए कि सियासत पर लिखने वाले सहाफ़ियों को अपने मुदीरान के अलावा अंदरूनी रुकावटों का सामना है। लोगों को मालूम है कि कुछ मामलात में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसी तहरीर कभी नहीं छपेगी। मेडोजा ऑनलाइन अखबार के लिए काम करने वाले सहाफ़ी, डोस्ट टीवी चैनल या फिर एको ऑफ मॉस्को रेडियो ऐसे चंद ज़राए हैं जो रियासत के ज़ेर इंतज़ाम नहीं हैं या क्रेमलिन से मंसूब अफराद के ज़ेर असर भी नहीं। लेकिन इन इदारों का काम कुछ सालों से दुश्वार हो चुका है। खुसूसन सदर पुतिन के मौजूदा दौर में न सिर्फ हालात पेचीदा हुए हैं बल्कि ख़तरनाक भी होते जा रहे हैं। मॉस्को से ओल्गा पवलोवा और रिकार्डो मार्टिना की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। सहाफ़ियों और हुकूमत के दरमियान रिश्ता मुखालिफत का ही होता है। सहाफ़ियों का काम है हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाना, हुकूमत को अवाम के सामने जवाबदेह करना। लेकिन जो चीज़ परेशान कुन है वो है अवाम और सहाफ़ियों के दरमियान बढ़ता हुआ अदम एतमाद, और ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में नज़र आ रहा है। सहाफ़ी तो सच्ची और गैर जानबदार रिपोर्टिंग करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है, कई सहाफ़ियों को इसी वजह से किरदार कुशी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अवाम आज़ाद सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए क्या कर सकती है, ये आप हमें बताइए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आइए और हमसे इस मौजू पे बात कीजिए। इसी पेज पे आपको हमारी तमाम तर कंटेंट भी बआसानी मिलेगी। इस वक्त दुनिया भर में बदतरीन फ़िज़ाई आलूदगी के हामिल 20 शहरों में से 18 भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। फ़िज़ाई आलूदगी को अब दुनिया भर में ही सेहत के लिए एक ख़तरे के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल दुनिया भर में आलूदा हवा में सांस लेने से पैदा होने वाली बीमारियों के बायस 70 लाख अफराद क़ब्ल अज़ वक्त मौत के मुंह में चले जाते हैं। दुनिया में कहाँ कितनी आलूदगी है और क्यों, इसकी वजह जानने के लिए साइंसदान अब खला से ज़मीन को देख रहे हैं। कोपरनिकस मिशन प्रीकर्सर सेंटिनल-5 नामी सैटेलाइट फिजा में मिट्टी के ज़रात से लेके मुज़र सेहत गैसों की मौजूदगी का इंतहाई दुरुस्त डेटा फराहम कर रही है। माहिरीन के मुताबिक मिशन से हासिल होने वाली तस्वीर कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा फराहम करती हैं, जिससे इस बात का ताजुन किया जा सकता है कि आलूदगी कहाँ से आ रही है और इसे रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। इस मिशन से हासिल होने वाली तस्वीर और मालूमात आप भी देख सकते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट ESA.INTL पर। और पाकिस्तान की बात करते हैं। एक सरकारी इदारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में साल 2018 के दौरान आग और बिजली से झुलसने के तकरीबन 24,000 केसेस सिर्फ सरकारी अस्पतालों में लाए गए। अब से कुछ अर्सा पहले तक पूरे सूबे में कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड सेंटर नहीं था जहां झुलस जाने वाले अफराद का इलाज किया जा सके। पेशावर से उमर फारूक आज हमें बता रहे हैं सूबे के पहले बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल के बारे में, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की एक बहुत बड़ी ज़रूरत को बिलाखिर पूरा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक के रिहायशी रशीदुल्लाह के घर के बावर्ची खाने में गैस बढ़ गई, जिससे आग भड़क उठी और उसका जिस्म झुलस गया। गैस तो वो अंदर जमा था किचन में, उसने जब मैं वापस करता था रेगुलेटर उसने ब्लास्ट कर दिया, धमाका कर दिया।
رشید اللہ کا علاج پشاور میں قائم برن اینڈ پلاسٹک سرجری ہسپتال میں جاری ہے. یہ صوبے کا پہلا جدید ہسپتال ہے جسے امریکی ادارے USAID کے تعاون سے بنایا گیا ہے. یہ ہسپتال 120 بستروں پر مشتمل ہے. ہمارے جو ہے 4 ماڈیولر تھیٹر ہیں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ تھیٹرز ہیں. اس کے علاوہ 2 ایمرجنسی تھیٹرز ہیں اور 2 جنرل پلاسٹک سرجری کے اور بھی تھیٹرز ہیں. تو 8 آپریشن تھیٹرز ہیں. تو ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کہوں تو ہم نے پیشنٹس ٹریٹ کیے ہوئے ہیں. اس ہسپتال میں مریضوں کا ڈیٹا آن لائن سسٹم سے منسلک ہے تاکہ ڈاکٹرز اپنے مریض کے چارٹس کہیں بھی دیکھ سکیں. اس ہسپتال کے قیام سے قبل جلنے اور پلاسٹک سرجری کے مریض اسلام آباد، لاہور اور کراچی کا رخ کرتے تھے. جی بالکل سہولیات سے ساری سہولیات موجود ہیں. ہمارے مریض کا یہاں بہترین علاج ہو رہا ہے. یہاں صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. ڈاکٹرز موجود ہیں، ادویات مل رہی ہیں. ہم یہاں بہت مطمئن ہیں. ہسپتال میں تیزاب سے جلی ہوئی خواتین اور پیدائشی طور پر کٹے ہونٹ والے بچے بھی آتے ہیں، لیکن اکثریت ان کی ہے جو گھروں میں گیس بھر جانے سے یا پھر کسی دھماکے میں جلس جاتے ہیں. ایک دفعہ برن ہو جائے اس کے بعد اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے برنز کے بارے میں اویئرنیس کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یار گیس کی چولہوں کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. اپنے کچنز میں بچوں کو نہیں چھوڑنا. جو خواتین کچن میں کام کرتی وہ لمبی چادریں نہ پہنے. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ برن اینڈ پلاسٹک سرجری ہسپتال میں نہ صرف خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا علاج ممکن ہو سکے گا بلکہ افغانستان سے آنے والے مریضوں کو بھی سہولتیں دی جائیں گی. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. ہر مذہب کی عبادت گاہ اس کے ماننے والوں کے لیے ایک طرح کی پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں انہیں آ کے سکون ملتا ہے. لیکن واشنگٹن کے قریب بدھ مت کا ایک ایسا مندر ہے جو صرف انسانوں کے لیے نہیں، مختلف براعظموں سے تعلق رکھنے والے طوطوں کے لیے بھی ایک پناہ گاہ ہے. آئیے چلتے ہیں واشنگٹن سے کچھ ہی دور. واشنگٹن ڈی سی کے شمال میں تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدھ مت کا یہ مندر پرسکون اور خاموش ہونے کے بجائے یہاں پرندوں کی رنگ برنگی اور اونچی آوازوں کے لیے جانا جاتا ہے. ہم اس چڑیا خانے میں ایسے پرندوں کو رکھتے ہیں جنہیں کوئی رکھنا نہیں چاہتا. ایسے پرندے جو اعصابی امراض کا شکار، غصیلے یا مشکل ہوں، شاید اس سلوک کی وجہ سے جو انہیں گھریلو ماحول میں ملا. پرندوں کی اس پناہ گاہ کے ڈائریکٹر کرسٹوفر زولی کہتے ہیں کہ ان کے پاس 53 طوطے ہیں جن میں کئی اقسام کے اور افریقی گرے نسل کے طوطے شامل ہیں. وہ ہر ایک پرندے کے کردار، انفرادی ضروریات اور عادات کو جانتے ہیں. ایک ہفتے میں 1 سے 3 ایسی درخواستیں آتی ہیں کہ لوگ اپنے طوطے ہمارے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں. لوگ اکثر جوش میں آ کر طوطے خریدتے ہیں، لیکن جب انہیں گھر لے کر جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور اور ان کی دیکھ بھال کرنا کتنا مشکل ہے. کرسٹوفر کہتے ہیں کہ انہیں درخواستوں کی اکثریت سے انکار کرنا پڑتا ہے کیونکہ چڑیا خانہ صرف ایسے پرندوں کو لیتا ہے جنہیں کوئی بھی لینا نہ چاہتا ہو. کچھ طوطے نفسیاتی طور پر پریشان ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس لیے انہیں حفاظتی جیکٹ پہنائی جاتی ہے. اور یہ پناہ گاہ عطیات اور رضاکاروں پر چلتی ہے. مجھے ان طوطوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے. ان کو پیار محبت دینا اور بہتر زندگی حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنا. کچھ طوطے ایک طویل عرصے سے یہاں موجود ہیں. شاید ہمارا سب سے پرانا طوطا ہیری ہے. وہ نیلے رنگ اور سونے کا مکاؤ ہے. میرے خیال سے اسے 1969 میں جنگل میں غیر قانونی طور پر نشانہ بنایا گیا تھا. کرسٹوفر زور دیتے ہیں کہ طوطا پالنا ایک سنجیدہ کام ہے. یہ پرندے 50 سے 60 سال تک زندہ رہتے ہیں اور اپنے مالکان سے بہت منسلک ہو جاتے ہیں. وہ ہوشیار ہوتے ہیں اور انہیں مسلسل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم عوام کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ طوطوں کو واقعی جنگل میں چھوڑ دیا جانا چاہیے اور پالتو جانور کے طور پر نہیں رکھنا چاہیے. کرسٹوفر کہتے ہیں کہ ان غیر ملکی طوطوں کے ساتھ ایک اچھا اور طویل تعلق بنانا مشکل نہیں، لیکن اس میں بہت وقت اور وسائل لگتے ہیں. جیسے کسی بھی رشتے کے لیے عزت، احترام اور سب سے بڑھ کر محبت چاہیے ہوتی ہے. میکسیم موسکالکوف کے ساتھ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.